Hello everyone, this is Sandeep from Sandeep IELTS, and in this video I'm going to discuss about task 1 of IELTS. As we all know that there are two tasks, task 1 and task 2. So in this video आज हम करने जा रहे हैं टास्क 1 के बारे में. So टास्क 1 के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या होता है टास्क 1. टास्क 1 जनरली पिक्टोरियल ग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स आती है, लाइक लाइन ग्राफ आ गया, बार ग्राफ आ गया या फिर पाई चार्ट आ गया. उसके ऊपर आपको 150 टू 170 वर्ड्स लिखने होते हैं एंड टाइम लिमिट इज 20 मिनट्स. सो 20 मिनट्स होते हैं टास्क 1 के लिए एंड 40 मिनट्स होते हैं टास्क 2 के लिए. सो 1 आवर की होती है राइटिंग. So in this video, I will discuss some vocabularies, some trends, and how to do starting of introduction of task 1. So get started. So first of all, I have written some words: starting, type, verb, and description. So starting means कि आपको starting कैसे करनी है, introduction कैसे लिखना है writing task 1 का. So you can write any from these, like the given, the presented, the shown और the provided. आपको इनमें से एक लिखना है, या तो the given लिख दो या फिर the presented लिख दो या फिर the shown, और इनमें से भी एक एक उठाना है and I will elaborate later. The given diagram, the given table or the given figure, the given line graph, the flow chart, the pie chart, the process diagram, the map. So ये तो आपको like जब क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा कि आपका जो है डायग्राम है, लाइक पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है या फिर बार ग्राफ है. And these are verbs, like the given diagram shows, the given diagram represents, depicts, illustrates, outlines, delineates, denotes, compares, summarizes. So इनमें से आपको कोई भी एक उठाना है. Okay, so let's make a sentence. The given or the presented line graph depicts now the comparison of something, the differences between, the changes, the data about, the proportion of, the ratio of. Okay, so let's make a sentence, or let's make the introduction of something. So I'm writing the sentence: the presented, I'm taking line graph, the presented line graph I'm taking denotes. You can take any, ठीक है, आप delineates भी लिख सकते हो, illustrates भी लिख सकते हो, वो तो लाइक आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा कि क्या लिखना है. The line graph, the line graph I'm taking denotes. Denotes the data about sales and purchase of various items of a company in year 2010 and 2020. So this is the introduction of any line graph. जो आपको like line graph मिला है, for example आपको एग्जाम में क्वेश्चन में, so आपको ऐसे लिखना है: the presented line graph denotes the data about sales and purchase of various items of a company in year 2010 and 2020. So this is called the introduction of line graph of task 1. Fine. So ये introduction लिख दिया. So these are very important. You can write the provided line graph denotes the data about. Okay, because I have written the presented, so you can write the shown process diagram summarizes like something. So ऐसे लिखना है आपको writing task 1 का introduction. So now we are moving further. So now we are moving on how to start body paragraphs of writing task 1. Okay, it can be line graph, bar graph, as I told you earlier. So have a closer look. As presented in the diagram, or as presented in the graph, or as presented in the pie charts or table, you can start
your BP1 from this line. BP1 means body paragraph 1. Second, you can start as shown in the illustration. Illustration also means like as shown in the picture. As can be seen in the pie chart, as can be seen in the line graph. Uh, Getting back to the details, you can write this phrase before starting your BP1. And now turning to the details की तरफ move कर रहे हैं. The table data clearly shows that बला 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 जो आपकी लाइक इंफॉर्मेशन है उसको लिख सकते हो आप बाद में. It is interesting to note that it is conspicuous that in year like that was the highest or whatever that. ये तो सिर्फ मैंने आपको लाइक ये बताया कि स्टार्ट कैसे करते हैं और सारा लाइक एक्सप्लेन करूंगा मैं. डोंट वरी अबाउट दैट. It is lucid that it could be noticed that जो भी था लाइक सेल्स वर हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई फरवरी जो भी लिखना है आपको. सो ये फ्रेजेस ये वोकैबुलरी आप लिख के आप लाइक अपना BP1 स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन सम वोकैबुलरीज दैट वी कैन यूज टू शो चेंजेस. चेंजेस मींस कोई चीज अगर कोई किसी फिगर में इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं. कोई फिगर डिक्रीज हुई है, सेल्स डिक्रीज हुई है, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं. कोई चीज डिक्रीज नहीं हुई लाइक स्टेबल रही है या रिमेन अनचेंज्ड रही है, उसके लिए हम डिफरेंट वोकैबुलरीज क्या क्या यूज कर सकते हैं. सो लेट्स मूव. सो ट्रेंड मींस क्या ट्रेंड इंक्रीज डिक्रीज और स्टेडीनेस. इंक्रीज मींस बढ़ना. सो व्हाट वी कैन यूज फॉर बढ़ना लाइक इंक्रीज के लिए हम राइज यूज कर सकते हैं. राइज रोज सेकंड फॉर्म अगर कोई पास्ट की बात लिख रहे हो रोज लिखेंगे हम. गो अप मींस वेंट अप. कोई चीज बढ़ी है लाइक सेल्स वेंट अप, सेल्स रोज, population went up. And rocated means का भी बढ़ना होता है. So you can use different vocabularies instead of using increase again and again. Climbed, upsurged, soared, shoot up, jump, skyrocket. So I wrote again surge means बढ़ना. So कोई भी चीज अगर किसी चीज में इंक्रीज हुआ है सो आपको ये वोकैब यूज कर सकते हो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंक्रीज. ओके, वन एग्जांपल इज देयर वाज एन अपसर्ज इन द सेल्स ऑफ टीवी in year 2010. Okay, there was a rise in the sales of TV in year 2010. An increase can be seen in the sales of TV in 2010. Sales of TV showed an upward trend. So like you have to change the sentence structure according to like time. Okay, sales there was a growth in the sales of TV in year 2010. A climb also you can use like these. बढ़ने के लिए हम these are the noun. So हम ये यूज कर सकते हैं इसके लिए. नाउ मूविंग ऑन डिक्रीज मींस किसी चीज में अगर कोई घटी है, कोई चीज सेल्स घटी है, पॉपुलेशन घटी है, उसके लिए हम डिक्रीज की जगह और क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं. हम यूज कर सकते हैं फॉल मींस गिरना. ओके, डिक्लाइन मींस गिरना. प्लमट, ड्रॉप, रिड्यूस, कोलैप्स, टेक अ नोज डाइव, वेंट डाउन या गो डाउन तो हम लाइक प्रेजेंट में बात करें तब लिखेंगे. इफ यू आर राइटिंग अबाउट पास्ट देन वेंट डाउन. फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ टीवी डिक्लाइंड इन ईयर 2010. सेल्स थी जो टीवी की वो डिक्लाइन होगी मींस नीचे गिर गई या डिक्रीज होगी. ड्रॉप्ड इन 2010, took a nosedive in 2010. The sales of TV went down in year 2010. Fine. Now we are moving on these. A fall can be seen in the sales of TV in year 2010. 2010 में जो टीवी की सेल्स थी उसमें डिक्लाइन देखा जा सकता है, फॉल देखा जा सकता है. A reduction can be noted in sales of TV in 2010. So you can use these words instead of decrease. Fine. Let's move to steadiness. Means कोई चीज ना घटी है ना बढ़ी है, वो सेम रही है. Okay, stable रही है. So stable की जगह हम और words use कर सकते हैं unchanged. Now taking the same example, the sales of TV in year 2010 remain unchanged रही हो. Leveled out means ना लाइक बढ़ी ना कोई घटी, उसमें level out सेम रही.
remained constant, constant means सेम रहना, remained steady, steady means बिल्कुल सेम रहना, remain static, static means सेम रहना. So a stability can be seen in the sales of TV in year 2010. A plateau can be seen in the sales of TV in year 2010. So हम ये vocabulary use कर सकते हैं चेंजेस शो करने के लिए. ओके, चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज और स्टेडीनेस रहता है लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में. ओके, सो ये वर्ड्स अगर यूज करते हो तो आपका लाइन ग्राफ है वो बड़ा, टास्क वन है, बड़ा अच्छा लगेगा. सो दीज आर द वोकैबुलरीज टू रिप्रेजेंट सम चेंजेस. चेंजेस मींस चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, किस तरह से हुआ है. मींस एकदम से इंक्रीज हुई है कोई सेल्स या पॉपुलेशन, या फिर स्लोली इंक्रीज हुई है, या फिर एकदम से डिक्रीज हुई है. सो उनके लिए हम वर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स या क्या वोकैबुलरीज यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द वोकैबुलरीज. रैपिड चेंज, रैपिड चेंज मींस अगर कोई चीज एकदम से इंक्रीज हुई है, उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, द सेल्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली. ड्रामेटिकली मींस एकदम से बढ़ गई है. ओके, सेल्स इंक्रीज्ड रैपिडली. रैपिडली मींस एकदम से बढ़ना. द सेल्स इंक्रीज्ड शार्पली. शार्पली मींस एकदम से बढ़ गया. डिक्रीज भी यूज कर सकते हैं इनके लिए, पॉपुलेशन डिक्रीज्ड शार्पली, एकदम से कोई चीज नीचे गिरना, डिक्लाइन होना, तो उसके लिए एकदम से के लिए हम ये यूज करते हैं स्विफ्टली, क्विकली, कंसिडरेबली. जो भी चीज क्विकली हुई है, कोई भी चीज हो सकती है, पॉपुलेशन भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है, फिगर भी हो सकती है. सो उनके लिए हम यही वर्ड्स यूज कर सकते हैं. मॉडरेट चेंज. मॉडरेट चेंज मींस हल्का सा चेंज हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे कोई चीज बढ़ी है या फिर घटी है. सो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं मॉडरेटली. द सेल्स ऑफ टीवी इन ईयर 2010 increased moderately, increased gradually. Gradually means like that. Okay, so उनका ग्राफ इस तरह से होगा, एकदम से नहीं होके ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना. ओके, प्रोग्रेसिवली, slowly we can, slowly is here, progressively we can write after gradually, moderately. Okay, so कोई भी चीज अगर धीरे धीरे बढ़ी है उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. स्लाइड चेंजेस, हल्का सा चेंज हुआ किसी चीज में, ठीक है, ऐसे ना हो कि ऐसे. इट इंक्रीज्ड स्लाइटली, SLIGTLY, स्लाइटली, स्लोली, टेडियसली. टेडियसली मींस बड़ी हल्की हल्की, बड़े बड़ी धीरे धीरे कोई चीज इंक्रीज हुई है, कोई डिक्रीज हुई है. सेल्स हो सकती है, फिगर हो सकती है, प्रोपोर्शन हो सकती है, उनकी डेथ रेट हो सकता है, बर्थ रेट हो सकता है. जो भी आपको आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आप उन राइटिंग टास्क वन में आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो किसी भी ट्रेंड को शो करने के लिए. ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज उनको शो करने के लिए आप ये वर्ड्स आपको यूज करने उनके साथ, ताकि आपका आंसर बड़ा अच्छा लगे. सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द ग्रामर एंड वोकैबुलरीज टू डिस्क्राइब ईयर्स, मंथ्स एंड डेट्स, लेट्स हैव अ क्लोजर लुक what you can write while starting some dates and years from year 1992 2000, or you can write commencing from 1980, between 1995 and 2005. ये आप तब लिखोगे जब आपको अपना दिया अपना ग्राफ दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग लिखना है. ये तो सिर्फ एग्जांपल्स लिखे हैं, कहीं आप ये सोच लो कि हमें भी ये लिखनी है. ये नहीं लिखने, जो आपको क्वेश्चंस मिला है उसके अकॉर्डिंग लिखना है. आप जब BP1 स्टार्ट करेंगे उसके बीच में जो लाइंस लिखनी है आपको. By 1985, in 1985, in February, during the period, in the first half of the year, during the first decade, in the 80s, in the 90s, during the next 6 months, in the mid 70s, अगर 70s years चल रहे हैं, 1972, 1975, 1977, so you can directly write in the mid 70s. Within a time span of 10 years. Time span means a period of 10 years. भी कोई 10 साल के पीरियड में सेल्स इंक्रीज हुई है, सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो within a time span of 10 years sales rose up by 90%, by 20%, जो भी आप लिखते हैं. Within 5 years, next month, next quarter, next year, previous year. अगर आपको कोई डिटेल्स देनी है प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट मंथ की, सो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन, वो कैप फॉर परसेंटेजेस. परसेंटेजेस मींस कोई इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो कितनी परसेंटेज से हुई है, कोई चीज बढ़ी है तो कितनी परसेंटेज से बढ़ी है. सो 10% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, और सेल्स इंक्रीज्ड बाय 25%. Their population dropped by 10%. The sales
fall at 50%. Reached to their percentage reached to 75%. Their sales reached to 75%. Declined to about 49%. मीन्स अगर कोई इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है तो आप ऐसे लिखोगे, अपना मेंशन फिगर ऐसे फिगर मेंशन करनी है आपको। वो क्या है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मींस अगर 75 आया तो हम क्या लिख सकते हैं, 75 की बजाय लाइक 49 आया तो हम क्या लिख सकते हैं, 4% है कोई चीज, 4% इंक्रीज हुई है। मोस्टली दीज फ्रैक्शंस आर यूज्ड इन पाई चार्ट, पाई चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस। सो आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लिखना है। 4% अगर कोई चीज है तो अ टाइनी फ्रैक्शन वी विल राइट। 24% है ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, 25% एग्जैक्टली अ क्वार्टर, 33% वन थर्ड बोलते हैं हम 33% को, 50% अ हाफ, 50 है तो अ हाफ, 51% जस्ट ओवर हाफ, 73% nearly three quarters. Okay, so how to make the examples and sentences from these fractions? Let's take an example. Nearly a tiny fraction of people studied English in year 2050. Oh, sorry, 1950. एग्जैक्टली क्वार्टर मीन्स अगर 25% कोई दे रखी है किसी पाई चार्ट में, अगर पाई चार्ट ये है, अगर ये वाला 25% है कि जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज रीड की या स्टडी की, तो उनको कैसे लिखना है आपको, एग्जैक्टली अ क्वार्टर ऑफ पीपल स्टडीड पंजाबी इन 1950 instead of writing 25% of people studied Punjabi. Okay, so you can write exactly a quarter. अगर 33% अगर किसी ने कोई चीज की 33%, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, ये है 33% मींस उन्होंने लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी इन ईयर 1950, 33% लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। सो कैसे लिखेंगे, वन थर्ड ऑफ पीपल डिड नॉट स्टडी एनीथिंग इन ईयर 1950, उन्होंने कुछ भी स्टडी नहीं किया। एंड a half of people, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली बात लिख रखी है हाफ, इन्होंने लाइक हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी लैंग्वेज इन्होंने स्टडी की है, तो a half of people studied हिंदी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ राइटिंग 50% of people studied लैंग्वेज। अगर 50% से अबव है तो जस्ट ओवर हाफ लिख सकते हैं, नियरली 3/4 लिख सकते हैं। ओके, so these are the fractions, vocab for percentage and vocab and grammar for dates and months and years that you can write in your writing task 1. So this was all about writing task 1 and I hope you have enjoyed it. So keep watching. Have a nice day.